71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. Am I clear? Can I go next? In that I'll come to. I'm keeping some suspense. I want you to. No, this is a part of the point. I want you to stay with us for some more time. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. It will have approximately 42,000 polling stations. In third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 15 districts. Third phase, 78 assembly constituencies in 15 districts will go for poll. It will have approximately 33.5 thousand polling stations. 10 districts will have 2 phases of elections for logistical reasons. 28 districts will have single-phase elections. Patna and Bhagalpur districts will have elections in the first as well as second phase. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. 8 districts, namely Darbhanga, Madhubani, Purba Champaran, Paschim Champaran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur and Sitamarhi will have elections in second and third phases. So now, without further, keeping you in more suspense, issue of notification. First phase, 1st October. Am I clear? Last date of nomination, now I am reading only first phase, right? When I come to second phase, I will mention that. First phase, issue of notification, 1st October. Last date of notification, 8th October. Is it right? Scrutiny of nominations, 9th October. Is it clear? Last date of withdrawal of candidature, 12th October. Date of poll, 28th October. Counting of votes, 10th November, but that will be for all the phases, right? With your permission, 10th November. Can I now go to second phase, please? You there? Okay. Issue of notification, 9th October. Last date of nomination, 16th October. Whenever you want me to repeat, I will repeat, gladly repeat. Scrutiny of nomination, 17th October. Last date of withdrawal of candidature, 19th October. Date of poll, 3rd November. Counting, as I said earlier, 10th November. Shall I go to third phase, please? Sorry? Shall I go to third phase? Issue of notification, 13th October. 13th October. 13 October. Last date of nomination, 20th October. 20 October. Scrutiny of nomination, 21 October. 21st October. Last date of withdrawal of candidature, 23rd October. 23 October. Date of poll, 7th November. 7th November. Counting of votes, 10th November. Now, I would throw the floor open for... If you have your questions, please announce your name and organization before you... Only request is one by one, please. Sure, Just a minute, we'll begin with this. सर, मोहित दुबे न्यूज नेशन से बोल रहा हूं मैं। सर, जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव की बात है, आपने कहा कि ऐतिहासिक ये चुनाव होने जा रहा है कोरोना महामारी के दौरान।
अगर हम आपने जो उत्तरी बिहार के बारे में बात की, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, जितने भी जिले हैं, बाढ़ प्रभावित ये इलाके हैं। सर, आपको नहीं लगता था कि इन इलाकों में और फेजेस कराए जा सकते थे? चुनाव आपको लगता है कि 3 ही फेज में मुकम्मल हो सकता है? देखिए, बाढ़ का जो फेज है, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. इट वॉज ऑन द राइजिंग साइड, इट इज ऑन द वेनिंग साइड. जब हमारे अधिकारी गए थे, इन्होंने सेवरल पॉइंट्स पे मीटिंग ली थी जिसमें बाढ़ प्रभावित भी था, लेकिन जैसा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि तारीख का ऐलान अब चुनाव आयोग ने कर दिया है, पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए, क्योंकि 3 चरणों में बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। हमारी खबर पर मुहर लग गई। जेके 24/7 न्यूज लगातार कह रहा था कि 3 चरणों में ही बिहार के अंदर चुनाव होंगे, जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा, ये पहला चरण होगा, और दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा, बड़ी जानकारी, और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी दिवाली से पहले और 3 चरणों में बिहार का चुनाव होने जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है और 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर, 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 10 नवंबर का वो वक्त होगा जब बिहार में सरकार होगी, एक नई सरकार होगी या फिर यही सरकार होगी, ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन मुहर लग गई है। जेके 24/7 न्यूज की खबर पर निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे न्यूज रूम से लाइव। निशांत, जानकारी दीजिएगा। हम लगातार कह रहे थे कि 3 फेसेस पे ये चुनाव होंगे और ऐसा ही हुआ, तारीखों का ऐलान कर दिया गया, और दिवाली से पहले नई सरकार या फिर यही सरकार। निशांत, देखिए, वाकई कोरोना काल में चुनाव कराने चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव की घोषणा कर दी है, जो कि 3 चरणों में होने जा रही है। और जेके 24/7 न्यूज की तरफ से बहुत पहले से कहा जा रहा था कि बिहार के जो चुनाव हैं वो 3 फेजेस में हो सकते हैं, जिस पर मुहर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने भी लगा दी है। सबसे अहम चीज हो जाती है कि हर्ष, मैंने पहले भी कहा था कि बिहार भविष्य के भारत की राजनीतिक दिशा व दशा दोनों तय करता है, और बिहार का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है जब सरकार कोरोना काल में, महंगाई में, बेरोजगारी में, किसानों के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में चुनाव की घोषणा होने के बाद से क्या एनडीए वहां पर सरकार बना पाती है या नहीं, क्या आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर सरकार बनाती है या नहीं। अगर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बिहार में बनती है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश चुनाव और उसके बाद केंद्र के चुनाव पर पड़ेगा। वहीं अगर एनडीए अगर बिहार में जीतती है तो कृषि विधेयक, कोरोना काल में सरकार के कामकाज, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है, जनता उस पर विश्वास जताते हुए दिखेगी। इन्हीं मुद्दों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, 3 चरणों में चुनाव होना है, एक बार में कितने जिलों में चुनाव होगा और किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जो चुनाव आयोग ने बताया है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो आज पूरी ब्रीफ दी है उसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और 4 तारीखें निकल कर आ गई है, जिसमें 28 तारीख जब पहला चुनाव होगा, 3 तारीख जब दूसरा चुनाव होगा, 7 तारीख जब तीसरा चुनाव होगा, और 10 तारीख को बिहार के अगले सीएम का पता देश को चल जाएगा। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता की कमान मिलेगी या फिर उम्मीदों में बैठे आरजेडी के
आरजेडी को लीड करे, तेजस्वी यादव को कुछ तोहफा मिलेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन उससे पहले भी जो गहमा गहमी है अब पार्टियों में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है नामांकन के लिए। निशांत, इस बात को देखना होगा कि नामांकन की जो तारीख है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगी और महज 28 तारीख को जब पहला चरण का चुनाव होना है उससे पहले सारी नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। 8 अक्टूबर तक की डेट है इस पूरे मामले में। तो अब इसी दौरान, मतलब आज अगर 25 तारीख हो गई तो बेहद कम दिन बचा है, यानी कि महज 15 दिनों के भीतर यह तय करना होगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ रही है।